we start class now? Yes, Good morning, sir. Okay, we can start class now. yes, sir. Yes, sir. Unit 2 first lecture है ना, Unit 2 exact differential equation. This unit is very simple unit because 1-2 topic is also from your 12th class topic, linear differential equation. You know linear differential equation, पहले linear differential equation पढ़ा है ना शायद थोड़ा सा. Hello. Yes. dy by dx plus Yes, sir. py equals to q is a linear differential Yes, sir. equation. But Bernoulli equation you I think you not learned in the 12th class. But here first order differential equation, first order linear differential equation of first degree first, and then in this unit also we will study about first order and higher degree differential equation. Okay, so first of all 3 points are there: exact differential equation, linear differential equation, Bernoulli equation. They are first order and first degree differential equation. Okay, so exact differential equation, first of all we will discuss about exact differential equation today. Exact differential equation, linear differential equation and Bernoulli equation, we will discuss about these 3. Very simple. You know differential equation means what? What is the differential equation? Differential equation means an equation involving derivatives and its derivatives and independent variable and dependent variable. That means a linear differential equation is what? Differential equation is a relation between dy by dx y and x. जनरली फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज देखो यहाँ समझाऊंगा मेन है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है यही पर देखना है बस. बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही सिलेक्टेड डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में रखा हुआ है. बहुत पहले बहुत सारा कोर्स होता था बट अभी ओनली सिंपल लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर एंड हायर ऑर्डर वाला भी है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी गेट ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, हाउ कैन वी सॉल्व इट? ओके, सो सॉल्व कैसे करना है डिफरेंशियल इक्वेशन? सॉल्व मींस एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट राइट वी राइट एफ फंक्शन ऑफ दिस मींस रिलेशन बिटवीन dy by ds y and x. That is, whenever we write y equals to fx, generally our notation is this. That is, here y is dependent function variable, x is independent variable, y is function of x. When we suppose y is dependent variable, x is independent variable, then derivatives are like this: dy upon dx, d2y upon dx square, dqy upon dx square, xq and so on. These are the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. This is only first order and first degree. This is first order and first degree. Order first है, degree भी इसका power, degree means power of इसका ये first order and first degree. This is first, second order, third order and degree decide होता है. You know also how can you decide the degree? The degree of the highest order derivative is present in differential equation is known as degree. So here first order first degree means ये dy by dx रहेगा, साथ में x भी रहेगा, y भी रहेगा. That means ये relation between what? x, y, dy by dx. Here y is dependent, x is independent. So this relation that means this is equals to 0. Involving these 3 quantity, if we have a, then we can say that this is differential equation in y. y में differential equation है, y dependent है. And linear, when we say that this is linear differential equation. Linear differential equation means in equation derivative, that is y dependent variable, dy upon ds derivatives of dependent variable, they should occur in only first degree and not multiplied together. मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना उसमें y का और dy by dx का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए. इन लोगों का डिग्री मींस dy by dx इसका जो पावर है वो भी 1 होना चाहिए और y का भी डिग्री जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिग्री है वो भी 1 होना चाहिए. Then we can say that the differential equation is first order first degree differential equation. Okay, just like this, x dy upon dx plus y equals to 5. This is differential equation. Here x is multiplied with dy by dx, maybe y power 1, dy by dx degree 1. So this is
linear differential equation of first order first degree. So solution, also you know the solution of differential equation means what? The value of y in terms of x. Here y is dependent variable because this differential equation in y. So its solution will be y equals to some function of x with constant. General solution. And particular solution we give some value to constant, then particular solution we can get. Okay, so its solution is a relation between x and y also. That is value of y. Its solution is known as also primitive solution. From its solution we can find direct differential equation. We know y equal to mx. Suppose y equals to mx. Okay. From this equation, that is y is the value of y is mx. Okay. If y is dependent variable, then we can make a differential equation by differentiating it. That is, for that differential equation, it will be solution. It is primitive. So differential equation for finding solution, that means if we can get a differential equation from its primitive, that is differential equation. Here exact differential, because you know differential equation can be solved by using कौन कौन सा मेथड जानते हो? 12th क्लास में पढ़े हैं मेथड. टेल मी एनीवन याद है डिफरेंशियल इक्वेशन? बिकॉज दिस इज नॉट वेरी बिगिनिंग, बिकॉज यू नो अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट कैसे सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को? हेलो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में पढ़े ना? वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू नो ना? हेलो, Yes, sir. हाँ. तो अब क्या है, सेपरेबल फॉर्म में क्या होता था? डेरिवेटिव की वैल्यू, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन एक सॉल्यूशन से प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना तो डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट. Because in any type of practical, any type of situation, we get a relation between derivatives and its dependent and independent variable. So for solution, for finding solution, it is very very important to know the method of how can we find the solution. So dy by dx generally क्या करते थे? dy by dx equals to separable form होता था. separable form होने का मतलब क्या होता था? एक x का फंक्शन और y का फंक्शन वो सेपरेट हो जाता था. y वाले फंक्शन को y के साथ, इस वाले फंक्शन को x के साथ, जैसे ये f2 y dy इक्वल्स टू f1x dx कर दिए, और फिर क्या करते थे? सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर दिए, इधर इंटीग्रेट इधर एक कांस्टेंट लगा देते थे. बस अब इंटीग्रेशन किया, सॉल्व किया, जो भी रिलेशन आया विद वन कांस्टेंट, बिकॉज हियर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो फर्स्ट वन कांस्टेंट मिलेगा, सेकंड ऑर्डर तो दो कांस्टेंट मिलता है. सो बस ये सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन सॉल्यूशन आ गया. ये सेपरेबल फॉर्म था. सेपरेट है तो सेपरेट कर दिया, एक x का y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. ओके. अब ये सेपरेबल अगर नहीं होता है तो फंक्शन ऑफ, और ये दोनों मिक्सिंग फंक्शन रहता है, मिक्सिंग फंक्शन, दैट इज दिस फंक्शन ऑफ x y आल्सो एंड दिस इज f2 फंक्शन ऑफ x y आल्सो, मींस ये मिक्स है, सेपरेट नहीं कर सकते. सो इस टाइप का अगर होता है तो इसको फिर कैसे टेस्ट करते थे? फिर सॉल्यूशन करने के लिए क्या ट्राई करते थे? होमोजेनियस है कि नहीं, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो हियर होमोजेनियस, ये रिलेशन जो भी है, ये रिलेशन जो भी है, दे आर होमोजेनियस और नॉट, ये ट्राई करते थे. तो होमोजेनियस होने के लिए क्या होता था? होमोजेनियस मींस लाइक दिस, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये दिस इज होमोजेनियस रिलेशन, बिकॉज ये टोटल डिग्री 2 है, टोटल ये डिग्री 2 है, डिग्री 2 है. और अगर ऐसा कर दिया जाए, इट इज नॉट होमोजेनियस रिलेशन. होमोजेनियस मींस डिग्री, जो इच टर्म हैविंग डिग्री सेम डिग्री. तो यहाँ पर इसका 1, इसका 1, 2, ये 2 और यहाँ 1, सो होमोजेनियस नहीं है. अगर होमोजेनियस बनाना है तो ऐसा होगा, ये होमोजेनियस होता है. ये होमोजेनियस रिलेशन होता है. अगर ये भी अगर होमोजेनियस रिलेशन मिला इस साइड, तो क्या करते थे? क्या मेथड था? y इक्वल टू vx, ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे ना? हेलो, Yes, sir. किसी को याद आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूट करो, फिर सॉल्व करो, फिर हो जाता था. दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके. फिर लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखे थे. थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या होता था? dy upon dx py equals to q, या q p and q are a function of x, a linear equation in y.
सिमिलरली लीनियर इक्वेशन x भी कर सकते हैं, यहाँ x और यहाँ x करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y अलोन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो नाउ ये तो स्टेप है। ओके, कोई भी सब स्टेप फेल हो जाता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टेस्ट करते हैं। अब एग्जैक्टनेस के बारे में ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है, लीनियर और बर्नौली तो सेम है। ओके, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होता है, अगर ये सब मेथड फेल हो जाता है सॉल्व करने में, सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस if we can get a differential equation by direct differentiation of a relation between x and y। मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव को डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट, डायरेक्ट अगर क्या करें, प्रिमिटिव को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें और क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। एक रिलेशन है जिसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें और क्या मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। पहले क्या करते थे, जैसे y = mx, ये इससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होता है तो क्या करते थे, पहले इसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर क्या हुआ, dy/dx = डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको वन टाइम, सो इधर क्या हो जाएगा, m। अब यहां से क्या करते हैं, m की वैल्यू निकाले, y/x, इस वैल्यू को रख दिया इसमें m की जगह पे, जैसे m की जगह वो वैल्यू को रख दिया y/x, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, x dy/dx - y = 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट बाय दो प्रोसेस करना पड़ा, फर्स्ट तो डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और भी प्रोसीजर आता है। अगर यहां पर दो कांस्टेंट है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 2-3 इक्वेशन बन जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बाद में एक रिलेशन मिलता है, ये कांस्टेंट को हटा देते हैं और क्या मिल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द प्रोसेस फॉर फ्रॉम प्रिमिटिव यू कैन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये प्रोसेस होता है। बट इफ वी कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट मींस ये जो प्रिमिटिव है, एक ऐसा रिलेशन हमको दिख रहा है जिसको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। मतलब वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ, we can write dy/dx of some relation is there equals to some value, जो भी है, अगर कांस्टेंट है, 0 है, जो भी है, अगर ये डिफरेंशिएशन है, मतलब एक रिलेशन है जिसको अगर डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करें और इक्वेशन मिल जाए। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन which can be find by direct differentiating ये रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो जनरली वी आर राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे अभी आगे, ऐसा m dx and dy equals to 0। जनरली वी आर राइटिंग फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus m dy equals to 0। This is the standard form। सेम थिंग यही है जो dy/dx लिखते हैं ना, फंक्शन dy/dx equals to फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सो वी कैन राइट dy/dx equal to समथिंग। यहाँ पर अगर ऊपर फंक्शन आ जाए f1 xy और नीचे फंक्शन आएगा xy, ये होमोजीनियस नहीं है। अब पहले होमोजीनियस होता है तो सॉल्व हो जाता है, अगर होमोजीनियस नहीं है तो कुछ और वे टेक्निक यूज कर सकते हैं। और इस पूरे को अगर इसके साथ ले आओगे y के साथ, इस पूरे का अगर इसको x के साथ ले आओगे तो क्या होगा, f1 dx और राइट साइड में होगा f2 dy। अब इसको इधर ले आया, माइनस कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, ये माइनस को इसके साथ रख लिया, इसको n बना दिया, इसको m बना दिया, m dx plus n dy। सो एनी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज m dx plus n dy equals to 0। इस फॉर्म में लिख सकते। नाउ वी नो दैट exact differential equation can be find by direct differentiation। means ये differential equation एक relation को differentiate करेंगे डायरेक्ट तो ये मिल जाएगा। और कैसा, relation between x और y को differentiate करने से आना है। तो यहाँ पर ना फर्स्ट एक relation ले रहा हूँ, exact differential equation। you know exact differential equation means what? This is equation is an exact differential equation if we can find it by direct differentiation
of a relation between x and y, or we can say relation between x and y, that is function, ये भी लिख सकते हैं। इधर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर भी ले आएंगे तो जीरो हो जाएगा। दैट मींस व्हाट, वही रिलेशन बिटवीन x एंड y, u लिखा हूं, u इज रिलेशन बिटवीन x एंड y, u यूज करेंगे, f भी यूज कर सकते हैं, x y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये एक रिलेशन है, और सॉल्यूशन जो है हमेशा x एंड y का रिलेशन होता है। तो x एंड y का रिलेशन वी कैन राइट लाइक दिस। सो इसका ये अगर एग्जैक्ट है, so it can be found from direct differentiation of this relation। मतलब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ये मिल जाएगा। ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा है तो अब देखो, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अगर ये अगर एग्जैक्ट हुआ, ये अगर एग्जैक्ट हुआ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इक्वल्स टू mdx प्लस ndy, mdx प्लस ndy, बिकॉज ये मिलेगा अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इस रिलेशन का, किसका? u का, ठीक है? तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, दैट इज मेन थिंग फॉर दिस चैप्टर सी। ओके, क्या लिखा है कोई बताओ? आज गर्मी बहुत है, गर्मी लग रहा है। हेलो, टेल मी, एनीवन? Yes, sir. रीड करो इसको। The necessary and sufficient condition for the differential equation mdx plus ndy is equal to 0 to be exact is del m by del y equal to del n by del x। ओके, सो इसको ना शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, है ना। दिस इज, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बट दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, बाकी पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर। आज तीनों टॉपिक का क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, कम से कम 1.5 घंटा तो क्लास लेंगे। बट यहाँ पर समझने के लिए क्या बताया हमने, एनी इक्वेशन कैन बी रिटन एज mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। वेयर जो m लिखा है दैट इज व्हाट, फंक्शन ऑफ x y, n लिखा है फंक्शन ऑफ x y। सो यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मींस ये होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और del m by del y इक्वल्स टू del n by del x, ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एग्जैक्ट होना है। दिस इज एग्जैक्ट, दिस इज एग्जैक्ट if and only if both implies ns कंडीशन। ये है लिखने का टेक्निक, ये मैथमेटिकल नोटेशन है। mdx plus ndy equals to 0 is exact if and only if this। यहां पर दिख रहा है m मतलब ये वाला, ये m क्या है? m इज फंक्शन ऑफ x y। ये जो है ये m फंक्शन ऑफ x y है, तभी तो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, और n भी फंक्शन ऑफ x y है, तभी उसको पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये एग्जैक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये मीन्स अगर ये एग्जैक्ट है तो हम ये यूज कर सकते हैं, एग्जैक्ट है अगर वो है इस इक्वेशन के लिए तो ये एग्जैक्ट होगा। ये एनएस कंडीशन का मतलब यही है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। मतलब अगर ये एग्जैक्ट है तो हमको मिल जाएगा, और इस इक्वेशन के लिए अगर ये हमको मिलता है तो ये एग्जैक्ट होगा। मतलब इधर से इधर चलो राइट, उधर से उधर चलो तब भी राइट। इफ एंड ओनली बोथ implies, but this implies this, this implies this। इसको बोलते हैं एनएस कंडीशन। कंडीशन इज नेसेसरी मींस अगर ये एग्जैक्ट हुआ तो ये कंडीशन मिलेगा, और कंडीशन इज सफिशिएंट मींस अगर इसको हम लेके चलेंगे इस इक्वेशन के लिए, सो वी कैन प्रूव दैट इट इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। यही से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो आएगा। सो इसको हम शॉर्टकट में फटाफट करते हैं ना, तो ध्यान देना है, ये इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है बट वेरी सिंपल। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज नेसेसरी। Okay, so here condition is necessary।
ओके, तो कंडीशन इज नेसेसरी मीन्स लेट mdx plus ndy equals to 0 is exact. Then we claim del m by del y upon del n by del x. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने इक्वेशन को एग्जैक्ट माना तो हमको वो प्रूव करना है. कंडीशन इज नेसेसरी. ये क्लियर है दिस. और फिर जब कंडीशन इज सफिशिएंट लेंगे तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? एनीवन, अगर देखो समझ रहे हो तो बताओ. अगर कंडीशन हमको सफिशिएंट बताना है तो क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये तो मैं प्रूव कर लूंगा, ये तो एक लाइन में प्रूव हो जाएगा. दूसरा लाइन बता रहा हूं, कंडीशन इज सफिशिएंट प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? हेलो, यस सर. मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके ठीक, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कंडीशन इज नेसेसरी भी है, सफिशिएंट है. तो कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन नेसेसरी है, ये एग्जैक्ट है तो हमको वो वी क्लेम का मतलब होता है हमको प्रूव करना है. अगर हम इसको एग्जैक्ट ले लिया तो उसको प्रूव करना है. यानी इस एग्जैक्ट हमने सपोज किया और उसको प्रूव करना है. सफिशिएंट में क्या करेंगे? उल्टा. इफ फॉर दिस इक्वेशन, इफ कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या प्रूव करेंगे? लेट फॉर दिस इक्वेशन del m by del y इक्वल टू del n by del x. पहले से सपोज कर लेंगे कि इक्वल है, देन इसको एग्जैक्ट प्रूव करेंगे. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हाट? ये एग्जैक्ट का मीनिंग है कि ये जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है इट कैन बी रिटन लाइक डेरिवेटिव ऑफ, बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि अगर d of u इक्वल्स टू d of u, देखो डेरिवेटिव ऑफ, पहले हम लोग डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव भी पढ़े हैं, टोटल डिफरेंशियल भी पढ़े हैं फर्स्ट टर्म में. सो अगर फंक्शन है u, फंक्शन है x y का, अभी हम बता रहे हैं ना कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है फंक्शन ऑफ x एंड y. सो अगर इसका सॉल्यूशन u x y इक्वल्स टू c सपोज कर ले तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा. दैट मींस du इक्वल्स टू c 0. du मींस डिफरेंशियल ऑफ ये फंक्शन, ये मिलेगा. यही तो एग्जैक्टनेस होता है. सो वी कैन सपोज यहां क्या सपोज किया? लेट दिस इज एग्जैक्ट. ओके, since m dx plus n dy equals to 0 is exact, therefore we can write du equals to 0. राइट साइड 0, लेफ्ट साइड को d of u, where u is, बस ऐसा ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं. u is equal to u x y means what? ये जो हम लिखे ना u equal to u x y, इसका मीनिंग क्या है? u फंक्शन ऑफ x y है ये. नाउ वी नो दैट टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद है? अगर u फंक्शन ऑफ x y है तो du इक्वल्स टू क्या होता है? del u by del x dx प्लस del u by del y dy इक्वल्स टू 0. याद आया फॉर्मूला? हेलो, u is function of xy, then total differential of u del u by del s dx del u by del y dy equals to 0. Okay, so this is equation 1 और this is equation 2. अगर हमने इसको एग्जैक्ट सपोज किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जहां पर u इज फंक्शन ऑफ x y. अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये फ्रॉम टोटल डिफरेंशियल du इक्वल टू दिस. नाउ 1 and 2 कंपेयर करो. कंपेयरिंग 1 and 2,
कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2, तो क्या होगा m की वैल्यू? हेलो, m इक्वल्स टू del u by del x. डेल यू बाई डेल एक्स, एंड तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर है तो अब डेल एम बाई डेल वाई निकाल लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? डेल एम अपॉन डेल वाई, और राइट साइड क्या हो जाएगा? डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये पार्शियली डिफरेंशिएट किया हो, इसको पार्शियली, एक तो कंपेयर किया तो m की वैल्यू मिला डेल यू बाई डेल एक्स, और इसको ना पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू मिल गई। एंड ये नीचे जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना सबको? हेलो, यहाँ पर, Yes sir. और ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन लिखा है इसके ऊपर भी जो कुछ स्पेस दिखता है कि नहीं? क्योंकि मैं नीचे रखता हूँ, दिखता नहीं करके। हाँ, तो आगे पहले ऊपर उठा देंगे, ना जगह मिल जाएगा। n इक्वल्स टू क्या होगा? डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। सो ये क्या हो जाएगा? इसको भी डिफरेंशिएट करो, डेल एन बाई डेल एक्स। क्या मिलना है? डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। नाउ इन जनरल वी सपोज दैट दिस टू आर इक्वल, यही सपोज करते हैं ना डबल डेरिवेटिव में, पार्शियल डेरिवेटिव में। In general, we are supposing that these two are equal. Del 2 upon del y del x, del 2 upon del x del y. Since in general we suppose that del 2u upon del x del y equals to del 2u upon del y del x, therefore del m by डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। यही हुआ ना? ये अगर एग्जैक्ट है तो हमको ऐसा हम ले सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है। इन दोनों को कंपेयर किया, m मिला n मिला, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स मिला। ये दोनों की वैल्यू ये है, और जनरली इसको इक्वल सपोज करते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो कंडीशन इज सफिशिएंट, इंप्लाइज सॉरी नेसेसरी, condition is necessary means for the result is what? Exactness result के लिए condition मिलना necessary means अगर ये result इसको हम suppose कर ले कि ये exact है तो condition मिल जाएगा, मिल गया, that is condition is necessary। now second, condition is sufficient, first part खत्म हो गया, अब condition is sufficient, और इसी से सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, सभी लोग बताना, ये जो अभी कर रहा हूं ना मैं, अभी टॉपिक को अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहा है? हेलो, Yes sir. Yes sir. हाँ, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं ये बोल रहा हूँ, स्क्रीन में स्पेस मिल जाएगा ना, वो ऐसा सेटिंग कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा होगा ना? हेलो, Yes sir. Yes sir. Yes sir. सब थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये है कि कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट में क्या करना है? उल्टा सपोज करना है, मतलब इसको सही मानना है। अभी ये मेन पार्ट यही है, अभी यही से सॉल्यूशन बनेगा, ये कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, सो यहाँ क्या करना पड़ेगा? अभी कंडीशन इज सफिशिएंट मींस लेट फॉर m dx plus m dy equals to 0 del m by del y, del m by del y equals to del n by del x। let सपोज कर रहे हैं for this differential equation del m by del y equal to del m, then we have to show that,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर इस इक्वेशन ये वाले इक्वेशन के लिए अगर ये कंडीशन सपोज कर लेते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। इक्वेशन एग्जैक्ट होने का मीनिंग ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डी ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी कैन राइट। मतलब ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी कैन राइट, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर, इस वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं डी वेयर यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर हम इस इक्वेशन के लिए इसको सपोज कर लेंगे तो उसको एग्जैक्ट हम दिखा सकते हैं। दिखाने का मीनिंग ये होगा कि इसकी जो वैल्यू है डी ऑफ समथिंग सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी कैन प्रूव। सो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी स्टेप, बिकॉज यही से सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, जस्ट लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है ना, एग्जैक्टनेस में भी होता है। ओके, सो हियर फॉर proving it we have to suppose that one thing we have to suppose here, let integration of m dx as y constant equals to, I think it is take for proving u। इधर अभी ध्यान देना है, इधर इसको प्रूफ समझने के लिए हमने सपोज अभी इसको प्रूव करना है। हमारे पास ये है, दिस रिलेशन इज गिवन फॉर दिस इक्वेशन। अब हम क्या सपोज करें, m इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, m फंक्शन ऑफ x y, इसको इंटीग्रेट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। y जो लिखा हुआ है उसको हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें, y को कांस्टेंट सपोज करें, तो जो वैल्यू हमको मिलेगा वो तो होगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, बट y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगा उसको हम सपोज कर रहे हैं y, बट u अगर लिखा तो u इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y, बिकॉज y तो इसमें रहेगा, साथ में x भी रहेगा। सो हम सपोज कर लिए कि इसकी वैल्यू u होता है। ओके, वेयर y is treated as constant for in performing integration। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तब उसको कांस्टेंट, इन परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन। ये मेन स्टेप है इसका, बस प्रूफ करने का ये मेन स्टेप है। ओके, इंटीग्रेशन एम डी एक्स यू, यहां पर ये लिख दिया कि y जो है इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तब y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये हो गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इसकी वैल्यू लिखना है d ऑफ u के फॉर्म में सेट करना है। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है, यू नो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसको अगर हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रेस्पेक्ट। अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, implies del by del x of integration m dx y constant del u by del x। ये लिख रहा हूं, क्या किया, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में, इधर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इधर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। हियर वाई एज ए ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल आउट। सो क्या मिला, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होना है, m del u by del x, ये होना है। क्लियर है। यहां से एक बार डिफरेंशिएट और करके रख लेते हैं,
डेल एम बाई डेल वाई, ये रिलेशन मिला, इसको हम इस रिलेशन को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। क्लियर, ये हो गया ना। इट इज गिवन, ये गिवन रिलेशन है। सपोज इसको 1 ले लेते हैं ना, दिस इज 1, del m by del y equals to del n by, it is given, so we can write in place of this del n by del x. So यहाँ पर this is equals to इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ from 1 we can write from 1 मतलब यहाँ से 1 we can write after this line del m by del y की जगह del n by del x, del n by del x, del n by del y की जगह del n by del x लिख दिया हूँ। और इधर क्या है del टू u अपॉन del y del x। क्लियर। Also we suppose that generally इधर x इधर y वो दोनों भी इक्वल होता है, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। हमने क्या किया, इस जगह पे इसको लिखा, इस इक्वेशन से लिख सकते इक्वल, और राइट हैंड साइड ये था, इसके जगह पे हमने ये लिख रहा है अभी, सिंस इन जनरल ये इक्वल लेते हैं, वो लिख देना है सिंस इन जनरल del टू यू अपॉन del x del y इक्वल्स टू del टू यू अपॉन del y del x। ये अब del n by del x इक्वल्स टू del टू यू अपॉन del x del y। क्लियर है। यहां पर अब इंटीग्रेट करेंगे, क्या निकालना चाह रहे हैं, n निकालना चाह रहे हैं, n। यहां पर m निकला था और यहां पर n निकालना है, n निकालना है, तो फिर क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये डिफरेंशिएशन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अब हम रिलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस, इसको नहीं रख रहे, इसको कर रहे हैं, बिकॉज इधर x पहले है, यहां भी x पहले है। अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा n, इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये x है वो x है, n मिल गया। इस साइड में ये x खत्म हो जाएगा, राइट साइड में क्या बचेगा बताओ, हेलो, दिस इज इक्वल्स टू दिस, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन, तो यहां इंटीग्रेशन हुआ तो n मिल गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, n। यहां पर भी इंटीग्रेशन किया, ये डिफरेंशिएशन x और एक इंटीग्रेशन वो भी खत्म, क्या बचा, एक du by del u by del y, del u by del del u by del y, del u by del y प्लस सम कांस्टेंट, बिकॉज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने से एक कांस्टेंट प्लस हो जाता है, सेपरेबल फॉर्म में करते हैं ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं और एक कांस्टेंट प्लस करते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी तो आएगा ना, अभी यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, बट दैट कांस्टेंट may have in terms of y also, because जब ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया, सो जो कांस्टेंट आएगा दैट मे बी फंक्शन ऑफ y also, बिकॉज y तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट के फॉर्म में y भी हो सकता है, सो कांस्टेंट के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ y। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बट y का फंक्शन क्यों लिखा, y इज ए कांस्टेंट ट्रीट किया हमने, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ ना, और ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, सो जब इंटीग्रेशन किया तो ये मिला, ये n की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का आप यूज करेंगे तो इसको हम दिखा सकते हैं कि d ऑफ u। क्लियर है। सो mn निकालना मेन था, अब बस अब इसको यूज करना है,
ओके, हमने ये सपोज किया, ये u इक्वल टू इंटीग्रेशन mds y कांस्टेंट। सो अब सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे सॉल्यूशन आएगा इसमें देखना है ना। और एग्जैक्ट कैसे बन जाएगा, इसको अगर du दिखा सकते हैं तो। ओके, सो अपना जो वैल्यू है, एक ये वैल्यू यूज होना है m की वैल्यू और एक n की वैल्यू। ये जो n मिला, इन दोनों वैल्यू का यूज करना है और ये दिखा देना है कि ये एग्जैक्ट कैसे होगा। ये लेफ्ट साइड को डी यू मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू को देख रहे हैं, इसकी वैल्यू। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एम की जगह पर ये लिख देते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस एन के जगह पे वो लिख देते हैं जो लिखा है ना, डेल यू बाई डेल वाई प्लस एफ वाई डी वाई, ये लिखा है। अब टारगेट क्या है कि ये लेफ्ट हैंड साइड डी ऑफ समथिंग दिख जाए। सो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, ये डी वाई को इधर से इंटू किया तो ये इसको एक साथ रखा और इधर है एफ वाई डी वाई। ओके, ये हो गया। अब इसको सेटिंग करने का टेक्निक ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो हम सपोज किए थे वो u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल्स टू d ऑफ u। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये d ऑफ u है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, प्लस इसको ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों खत्म हो जाएगा, एफ वाई डी वाई ही बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रल खत्म, तो क्या बचा एफ वाई डी वाई, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दिस इज टोटली कैन बी रिटन एज लाइक दिस, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था इसका, दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बिकॉज ये u, ये टोटल u की जगह पे आ गया, मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है d ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, बिकॉज यहां पर y के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है ये, और ये जो y है एफ वाई है, ये एफ वाई इसमें y है, बट इसी में देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, y एफ वाई कब लिखा था, कांस्टेंट की जगह पे लिखा था, और ये जो वैल्यू है ये इधर ध्यान देना इधर है ना, n इक्वल्स टू क्या था, n इक्वल्स टू u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई u प्लस एफ डी वाई, ये था। अभी ये n की वैल्यू लिखा था, उसमें n की वैल्यू में क्या था, ये एफ वाई, नॉट डी वाई, एफ, ये डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, ये था n की वैल्यू, ये वाला n की वैल्यू था। ये n की वैल्यू में एफ वाई, दिस इज एफ वाई, एफ वाई मीन्स उसमें x नहीं है, ये जो n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू इज दिस टोटल, बट एफ वाई में y है, x नहीं है। सो इसको हम क्या ट्रीट कर सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, टर्म्स ऑफ n की जो वैल्यू निकालेंगे जिसमें इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, तो इसको कैसे रीड कर सकते हैं, एफ वाई को क्या बोल सकते हैं कि टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n की जो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में रहेगा, n की वैल्यू लंबा सा वैल्यू रहेगा, उसमें जहां जहां x है उसको हटा देना है, बाकी बिना x वाले टर्म को लेना है, वो है एफ वाई, वो है एफ वाई, और u तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो टोटल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज रिटन एज दिस, दैट मीन्स व्हाट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, du इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जैक्टनेस प्रूव हुआ। अब यहां से सॉल्यूशन भी आएगा। ओके,
सो हम लोगों को ये मिला m dx प्लस n dy, बिकॉज इसको समझने में ही क्वेश्चन सॉल्व होता है और यही से फॉर्मूला बनेगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस और दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू 0 हो गया, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। फाइनली क्या हो गया, अब ये इस लाइन के बाद ये लिख सकते हैं कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट, hence condition is sufficient, condition is ये कंडीशन सफिशिएंट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट खत्म। अब सॉल्यूशन लिखने की जो टेक्निक है वो समझना है, सॉल्यूशन कैसे आएगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये दिस इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट, बिकॉज ये जो वैल्यू है डी ऑफ समथिंग, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग वी कैन गेट सॉल्यूशन। सो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ दिस u प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्यूशन निकालने का टेक्निक चल रहा है। क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो दिस इक्वल्स टू 0, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब वही तो एग्जैक्टनेस होता है। एग्जैक्टनेस का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट हो गया सॉल्यूशन। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो डी के सामने क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा और खत्म हो जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग we get यहां अगर इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, आएगा क्या, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इक्वल्स टू क्या लिखो बताओ तुम लोग, डी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसा लिख पाए अभी तो हम लोग देखें, तो अगर इसको इंटीग्रेशन करें इधर भी तो राइट साइड में क्या लिखो, हेलो टेल मी, जल्दी बताओ। भाई इसको हमने इस फॉर्म में लिख पाए, एग्जैक्ट हो गया, तो डी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो सेपरेबल फॉर्म भी तो पढ़ते थे पहले, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, इधर इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इतना ही बचा, लिख दिया। राइट साइड में भी इंटीग्रेशन हुआ, 0 का तो 0 आएगा, और क्या होता है, कांस्टेंट प्लस करते हैं, तो यहां पर कांस्टेंट लिखना है, यहां पर एक कांस्टेंट लिखना है। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है। बट u को हमने क्या लिखा था, याद करो u को क्या लिखा था, y कांस्टेंट ट्रीट करना है और m dx, m जो है xy का फंक्शन है, dx ये, क्योंकि u की वैल्यू यही था ना, हमने यही तो स्टार्ट किया था ना, इंटीग्रेशन m dx, m मींस एक फंक्शन ऑफ xy और y को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट किया था, ये u की वैल्यू है। और इंटीग्रेशन ऑफ fy क्या था, अभी हमने बताया fy क्या होता है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c। ये है सॉल्यूशन। You have to remember always this. This is the solution of exact differential equation. ये exact differential equation का solution लिखना है। जब अपने पास इस टाइप का इक्वेशन होगा, उसमें से m को लिख लेना है, m फंक्शन ऑफ xy,
n को लिख लेना है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अगर हो गया सो वी कैन राइट सॉल्यूशन लाइक दिस, ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना है, m की जो वैल्यू है यहाँ लिख देना है, y को ट्रीट करना है कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देना है, और n की जो वैल्यू है उसमें से टर्म बाय टर्म देखना है, जिसमें x है उसको नहीं लेना है, जिसमें x नहीं है उसको लेना है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x है उसको नहीं लेना है, बाकी पार्ट को यहाँ रखना है, y के फॉर्म में होगा और उसका इंटीग्रेशन करना है y के रेस्पेक्ट में और इक्वल्स टू कांस्टेंट कर देना है। दैट इज द सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन, एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन, है ना। सो दिस इज फर्स्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखा हमने ना। सो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है, mdx प्लस ndy। यहाँ पर 4-5 टेक्निक है, कभी जब भी कब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तो उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। सो रिमेंबर always, if our equation is this, then solution is what? Integration mdx plus integration ndy not containing x term। यहाँ पर याद कैसे रखा जाता है, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन mds इंटीग्रेशन ndy नॉट, n की वैल्यू लेना है जिसमें x नहीं है, हाँ x नहीं है, ऐसा ये डिटेल में ऐसा लिखना है सॉल्यूशन। वन टाइम्स यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशन दिस फॉर्मेट लिखना है। इंटीग्रेशन y कांस्टेंट mdx, इंटीग्रेशन mds y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c। दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये तभी यूज करेंगे जब ये एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट होगा मतलब ये देखना है ये del m by del y इक्वल्स टू del n by del x है कि नहीं, ये है कि नहीं। ये अगर है तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो ये सॉल्यूशन है। क्लियर। सो क्वेश्चन ले लेते हैं एक और सॉल्व करके देखते हैं। उसमें देखो क्वेश्चन जरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे ना। सो ये ग्रेवाल का क्वेश्चन और एक दूसरा बुक है उससे कलेक्टेड क्वेश्चन है सब, अभी जो बताऊंगा, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये दिस इज ए क्वेश्चन। ओके, सबको दिख रहा है ना? हेलो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. जनरली क्वेश्चन जो मिलेगा वो वही है जो फर्स्ट 12th में पढ़े हो, dy by dx से रिलेटेड है, बट ये अब एग्जैक्टनेस चल रहा है तो mdx प्लस ndy के बारे में सोचना है। दिख भी रहा है समथिंग dx प्लस समथिंग dy लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। सो क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, इसको कंपेयर करेंगे और mn की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। सो कंपेयरिंग with mdx plus ndy equals to 0, comparing with this, we get m equals to क्या है, y 1 plus 1 by x, y 1 plus 1 by x, 1 plus 1 by x and plus cos y, plus cos y, ये m की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है, n x plus log x minus x sin x, x plus log x minus x sin y, बिकॉज एग्जैक्टनेस चल रहा है। सो ऑलवेज ना इसी से कंपेयर करना है, m और n की वैल्यू लिख लेना, इस फॉर्मेट में लिख लेना है। dx का मल्टी कोफिशिएंट यहाँ पर y dy है, एंड dy का कोफिशिएंट वो mn हो गया। तो एग्जैक्टनेस के लिए क्या टेस्ट करते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेस्ट del m by del y, we see that del m by del y and del n by del x। क्यों, क्या होगा del m by del y की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, del m by del y
क्या होना है, यही ना। फिर n को x के रेस्पेक्ट में, n को x के रेस्पेक्ट में, given equation is हेलो, समझ में आया सबको? यस सर। समझ में आया कि नहीं? जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको इससे कंपेयर किया, m की वैल्यू लिखा, n की वैल्यू लिखा, del m by del y निकाला, y के रेस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया इसको, एंड x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया। सो del m by del y ये निकला, del n by del x ये निकला, दोनों सेम है। सो वी कैन राइट del n by del x इक्वल टू del m by del y। एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो गया। यही तो कंडीशन होता है, del m by del y इक्वल टू del n by del x होना चाहिए। सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अभी लिखा था सॉल्यूशन, कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx plus integration of terms of n not containing x dy equals to constant। ये है सॉल्यूशन, यहाँ y कांस्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये अगर एग्जैक्ट हो गया तो ये लिखना है, लिखने के बाद अब m की वैल्यू लिखो, अब सॉल्यूशन मिलेगा, अभी डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, y को कांस्टेंट लेना है, m की वैल्यू जो भी लिखा है पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, y 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉस y और ये dx, ये इंटीग्रेशन m dx लिख दिया। y को एज ए ट्रीट करना है कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जो n का टर्म्स है जिसमें x ना हो, कौन सा टर्म है बताओ, हेलो क्या है, n में जो जिस टर्म में x नहीं है वो कोई टर्म है वहां पर, हेलो यस सर। क्या करते हो तुम लोग, ध्यान देते हो कि नहीं, क्या पूछ रहा हूं मैं बताओ, यस सर। घर का क्यों साउंड आ रहा है, क्या पूछा हूं, हेलो यस सर। जो पूछा हूं बताओ, तो ये क्या है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, क्या होगा, इंटीग्रेशन ये लिख दिया, इंटीग्रेशन यहां पर लिखना है ना, एन के टर्म्स में, एन का वो टर्म्स बताओ जिसमें एक्स नहीं है, क्या लिखूं, 0 सर। 0 लिखना है। 0 यस सर। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो लग रहा है, हैं? पढ़ाते समय ध्यान रखना है, मैं कॉपी पेन लेके भी बैठने बोला था, क्या यस सर, कोई पर लेके बैठे हैं सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होना है, 0 ना। अब 0 का कांस्टेंट भी होता है इंटीग्रेशन, बट यहाँ लिखने की जो 0 है मतलब खत्म कर दो उसको, बिकॉज एक कांस्टेंट उधर पड़ा हुआ है इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। बस अब क्या बचा, अब इसका सॉल्यूशन क्या होना है, यहाँ इंटीग्रेशन करो, खत्म हो गया सॉल्यूशन। तो बताओ मेरे को सॉल्यूशन क्या आना है, इस लाइन के बाद अभी सॉल्यूशन क्या आना है, ये तो पूरा क्लियर है, इससे कंपेयर किया, mn लिखा, ये निकाला, अगर इक्वल आ गया दोनों तो एग्जैक्ट हो गया तो ये सॉल्यूशन है। तो m की वैल्यू यहाँ लिख दिया, y कांस्टेंट रहेगा और ये वाला टर्म भी लिख दिया 0, खत्म, उधर राइट साइड 0। अब इसको इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन मिल गया। क्या होगा सॉल्यूशन, इधर के इंटीग्रेशन बताओ, y को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करना है, सॉल्यूशन क्या होना है, y x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करो, y को कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा, y तो कांस्टेंट हो गया और x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है,
ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 1/x², नॉट log x, सॉरी, क्या हो जाएगा y x प्लस log x, y इसका तो x होगा, ये तो कांस्टेंट है, x होगा, log x होगा, और इसका क्या होगा x cos y, और इक्वल्स टू c, ये 0 ले लो और वो खत्म, ठीक। तो ये आ गया सॉल्यूशन। सो यू हैव टू राइट इट इन मिनिमाइज फॉर्म, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू सी। इसी जगह पे भी खत्म कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे लिख के भी छोड़ देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपली सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है सॉल्यूशन, है ना। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला लिखना है, m की वैल्यू लिखना है, अगर एग्जैक्ट है तो। अब जो है एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ना, दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें, वो भी ग्रेवाल का है। इसका सॉल्यूशन फटाफट बताना, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, बता रहे हो, चलो बताओ। ये बिकॉज देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन में सेट नहीं हो रहा है, ये जो है ना, यहाँ पर भी एम डी एक्स एन डी वाई क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। एम इक्वल्स टू क्या है, एम इक्वल्स टू क्या है बताओ, एम क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, एम क्या होगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक तरफ लिख दो, dx के साथ कौन आएगा, y cos x प्लस sin y प्लस y cos x प्लस y cos x plus sin y प्लस y ना, यही आएगा ना। yes sir, और y के साथ कौन आएगा, वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। one ये sir, one मेन थिंग एग्जैक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो देना है। mds प्लस ndy के फॉर्म इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखो और उससे कंपेयर करो, m की वैल्यू ये होगा, n की वैल्यू नीचे वाला आएगा ना, n इक्वल्स टू one sin x प्लस x cos y, sin x प्लस x cos y प्लस x, ये हो गया n की वैल्यू, क्लियर है। अब ये m की वैल्यू हो गया या n की वैल्यू हो गया। अब फिर यहां भी फटाफट देख लो क्या होगा, डेल m बाई डेल y की वैल्यू क्या है, डेल m बाई डेल y के रेस्पेक्ट में है, क्या होना है, डेल m बाई डेल y, y के रेस्पेक्ट में ना, cos x प्लस cos y प्लस 1 डेल n बाई डेल x cos x प्लस cos y प्लस 1 इक्वल्स टू डेल m बाई डेल y, सेम है, इंप्लाइज गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट। फटाफट सॉल्यूशन बताओ, इक्वेशन इज एग्जैक्ट, जो इक्वेशन दिया हुआ एग्जैक्ट है, therefore its solution is given by same procedure। क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y कांस्टेंट टर्म्स ऑफ n not containing x dy equals to c, सो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, जल्दी बताओ, y कांस्टेंट, m की वैल्यू क्या है, cos x, नो y cos x प्लस sin y प्लस y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n का टर्म्स जिसमें x ना हो, 0. dy equals to constant. So solution is finally write its solution. y को कांस्टेंट लेना है, x के रेस्पेक्ट में होना है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, y को कांस्टेंट लेना है, x sin y प्लस xy इक्वल्स टू c. हो गया सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल है ना. सो क्या सॉल्यूशन आया, sin x sin y x y sin x y sin x. ओके, सो दिस इज द टेक्निक. जो इक्वेशन होगा इससे कंपेयर करना है, mn निकाल लेना है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना है. अगर इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट हुआ तो ये सॉल्यूशन होगा. अब सपोज इक्वल नहीं होता है और एग्जैक्ट नहीं है, सो इस केस में क्या करना है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये वो सब मेथड से नहीं होगा, होमोजेनियस मेथड से, सेपरेबल फॉर्म से, किसी से नहीं होगा, बिल्कुल मिक्सिंग वैल्यू रहता है. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये कंडीशन अगर है तो एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन ही है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए वी कैन रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे टर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि यह डायरेक्ट डिफरेंशियल हो जाए. डायरेक्ट डिफरेंशियल वाले कंपोनेंट को टर्म बाय टर्म भी सेटिंग कर सकते हैं. मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको इस टाइप से लिखो कि d ऑफ सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. d ऑफ सम वैल्यू मतलब दोनों तरफ d ऑफ सम, d मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन. तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, dt खत्म, फिर वैल्यू टू वैल्यू, बस सॉल्यूशन आ गया. तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट लिख भी सकते हैं. कभी कभी रीग्रुपिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है, सो यू कैन सी दैट ऐसा लिखने से हो सकता है इस टाइप का. बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, तो इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो भी हो जाता है सेटिंग कि डी डिफरेंशियल बन जाता है टर्म बाय टर्म, और एक साथ भी हो जाता है. तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन आ गया. बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइंड करते हैं, एक ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं कि जिससे अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें और एग्जैक्ट हो जाता है. वो जो फैक्टर होता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे उसमें 12th क्लास में, तो उसका एक इंटीग्रेशन फैक्टर था कि नहीं. हेलो, Yes, sir. क्या था बताओ, जनरली क्या होता था फिर. वो तो बहुत स्टैंडर्ड चीज है ना, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 12th में पढ़े हैं. जो एक लीनियर इक्वेशन का एक इंटीग्रेशन फैक्टर मिला और फट से सॉल्यूशन लिख दिया, ऐसा था ना. किसी को याद है क्या होता है. हेलो, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx ऐसा होता था ना. वही तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, वो भी एग्जैक्ट बना के ही सॉल्व करते हैं. सो पहले इसलिए हम लोगों ने एग्जैक्टनेस को पकड़ा है कि एग्जैक्टनेस को पढ़ेंगे अभी. तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का कई मेथड है. आज की क्लास में पूरा खत्म हो नहीं पाएगा, बट फिर भी अभी भी टाइम है, बहुत सारा टाइम है आपके पास. ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर function of x, may be function of x, may be function of y, may be function of x and y both. जैसे y स्क्वायर हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, 1/x स्क्वायर हो सकता है, 1/y स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इनसे अगर इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF. ओके, सो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का बहुत सारे टेक्निक है. देयर आर 3-4-5 techniques are given in the book. First है by inspection. Inspection means जज करना कि क्या हो सकता है, किससे मल्टीप्लाई करे, कैसा रीग्रुपिंग करे, रीसेटिंग करे कि वो डिफरेंशियल बन जाए. सो सपोज अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, dx dy प्लस y dx. जनरली हम ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी उसी टाइप का दिख रहा है, mdx प्लस mdy. m की वैल्यू y है और n की वैल्यू x है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगा, del m by del y इक्वल्स टू 1,
इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स है, तो एग्जैक्ट तो है, ये एग्जैक्ट है, उसका सॉल्यूशन निकालने की क्या जरूरत है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको dxy होगा ना, यही है कि नहीं, हेलो, ये d ऑफ xy इक्वल टू ये होता है कि नहीं होता है, पहले x लिख दिया y का डिफरेंशिएशन, yes sir. और फिर y लिख दिया, फिर x का डिफरेंशिएशन, सो देयर आर सम फैक्टर्स, गिव बुक में भी दिया हुआ है, लिस्ट देखना, देखो ये ऐसा लिखा है तो इसको हम dxy लिख सकते हैं, तो जब हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे ना इसका, तो क्या करना है, इधर इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, xy इक्वल्स टू c, ये इसका सॉल्यूशन ये है, हो गया एग्जैक्ट, डायरेक्ट बना के लिखा इसको, या तो मेथड से भी कर सकते थे, बट ये जो फैक्टर है, ये इतना सारा चीज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ xy, मतलब डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसी टाइप से बुक में कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सपोज dy बाई dx, ये क्या होता है, dy बाई d, ये d ऑफ इसकी वैल्यू ये एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये कैसे बना समझ में आ रहा है, हेलो, देखो d ऑफ y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स का डिवीजन रूल से, डिवीजन रूल करोगे तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू dy ऊपर वाले का, सो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, मतलब अगर इक्वेशन में ये मिल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये मिल जाए, इसके जगह ये लिख सकते, दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ये लिखा है तो हम ये लिख देंगे, और जब सॉल्यूशन निकालने होगा डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा इक्वेशन हुआ dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बट यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए ना कौन सा टेक्निक यूज करें, dy के साथ है dx के साथ है, बट यहाँ अलग से है, तो mds प्लस ndy इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है, बट इसको अगर ये पता है, ये इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको, अपने से देख के सोचना कि क्या करें, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आए और इधर क्या बन जाएगा 1, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये dy बाई एक्स इक्वल्स टू 1, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर आ जाएगा y बाई एक्स, इधर आ जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ये तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर गिवन इन आल्सो बुक, देखना 4-5 है, ये ऐसा है, तो इसका क्या होगा d ऑफ x बाई y, ये किसके इक्वल होगा, टेल मी, इसको बताओ क्या होगा वैल्यू, क्या होता है dx बाई y इक्वल्स टू, हेलो, y dx minus x dy upon y square. ये y स्क्वायर नीचे आएगा, y dx माइनस x dy, यही होना है ना, यही होना है, Yes sir. हाँ, फिर इसका भी देखो, इसका भी होता है d log ऑफ x बाई y, y बाई x, इसका क्या होना है, एक तो क्या होता है डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन y बाई एक्स, लॉग का हो गया ये, अब फिर y बाई एक्स का भी डिफरेंशिएशन होना है, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये होना है, अब एक x कैंसिल हो गया, तो मतलब नीचे क्या आ गया x, और तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन अगर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स वाई, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, और फिर ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट है, तो सॉल्व करना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, डी और इंटीग्रेशन कैंसिल, दिस इज इक्वल टू समथिंग जो भी होगा, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आर गिवन इन बुक एज ए लिस्ट, ओके, तो ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन में क्या होता है कि किस डिफरेंशियल को फॉर्म में लिखने के लिए किस जज करना पड़ता है, इंस्पेक्शन मेथड थोड़ा सा टफ है, ओके, सो बाय इंस्पेक्शन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉल्व x dy माइनस y dx,
ओके, सो क्या हो सकता है बताओ? गिवन इक्वेशन, अभी क्या हो रहा है, एग्जैक्टनेस तो हम जान गए, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, दिख भी सकता है इसको। अब एग्जैक्ट हुई है, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकालोगे, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इसको बाय इंस्पेक्शन हम देख रहे हैं अभी। सेटिंग, ये तो सेटिंग हो जाएगा इसमें। और बाय इंस्पेक्शन क्या होता है, कभी कभी फैक्टर ही फाइंड कर लेते हैं कि इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी एग्जैक्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर गिवन इक्वेशन इज व्हाट, ये दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया है, यस। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ है। सो ये डी एक्स वाला क्वांटिटी है, ये डी एक्स वाला क्वांटिटी है, सबको एक जगह ला के लिख भी सकते हैं, बट यहां पर सेटिंग इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नॉन टाइप का लगता है ना, तो ये माइनस साइन आ गया, इसका मतलब डिवीजन फॉर्मूला लगना है। तो डिवीजन फॉर्मूला लगना है, अभी जो हम डिस्कस किए, तो इसमें इसके नीचे क्या होना चाहिए अगर सेटिंग करें तो, बिकॉज माइनस साइन लगा है, प्लस नहीं लगा है। प्लस लगा होता तो डी एक्स वाई हो जाता, माइनस साइन लगा है तो डिवीजन में लगेगा। तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर से ले आते हैं ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स हुआ ना। यहां से एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बाहर आया, और वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। बट अभी भी क्या है, ये किसका इंटीग्रल है, ये सेटिंग नहीं हुआ, तो ये तो समझ में आया, ये किसका डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई एक्स का, डी वाई बाई एक्स का। बट ये वाला कौन किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। Yes, sir. इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इंस्पेक्शन है, ये जितना कुछ हमको पता है उसको यूज कर रहे हैं। सो ऊपर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले टर्म में ये लिखा रहे हैं और नीचे वाले टर्म में ये लिखा रहे हैं, 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। इसको इधर ले आए नीचे और ये वाले पार्ट को इधर लिख के रखा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये किसी का डिफरेंशिएशन है, बताओ क्या है, डी ऑफ साइन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, है कि नहीं। जब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपन रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स जो कि ऊपर में रखा है, तो डी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दिस टोटल, तो डी ऑफ दिस इक्वल्स टू डी ऑफ दिस। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद यहां क्या लिखना पड़ेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट किया इधर भी इंटीग्रेट किया, तो यहां साइन इनवर्स वाई बाई एक्स बचेगा, साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, राइट साइड में क्या होना है, एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक्स आएगा ना, प्लस कांस्टेंट। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस। सो दिस इज सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। साइन को उधर ले गए और एक्स को उधर ले गए, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस वाई, सी कांस्टेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। हमने क्या किया यहां पर, इसको सेटिंग किया और डिफरेंशियल ऑफ दिस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ दिस, डी ऑफ दिस, इधर डी ऑफ दिस लिखा हुआ है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट प्लस कांस्टेंट, वो सॉल्यूशन। सो ये तो रीअरेंजमेंट हुआ, सेटिंग हुआ। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड बाय इंस्पेक्शन कि कुछ ऐसा चीज से इनटू कर दे दोनों तरफ और एग्जैक्टनेस आ जाए, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशियल आ जाए, डायरेक्ट डिफरेंशियल आ जाए, और फिर इनडायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो सॉल्यूशन आ जाए। दिस इज बाय इंस्पेक्शन मेथड।
इंस्पेक्शन मेथड में ये अरेंजमेंट होता है, अपने से जस्ट करना पड़ता है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. So, क्लियर हुआ? कौन सा मेथड बताया अभी? इंस्पेक्शन है ना ये। उसके बाद आता है क्वेश्चन लिखो 5। जो 5th क्वेश्चन है ना, इसमें ये नेक्स्ट वाला टॉपिक आता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है अपना? हेलो, नेक्स्ट वाला टॉपिक आ रहा है इसमें जो आईएफ निकालने का जो टेक्निक दिया होमोजेनियस इक्वेशन के लिए दिया है। होमोजेनियस इक्वेशन के लिए आईएफ है। तो एग्जैक्टनेस में पहले तो इंस्पेक्शन चल गया, फिर दूसरा होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में होता है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म में होमोजेनियस इक्वेशन मींस ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन दिया है इसी फॉर्म का है। एमडी जैसे ये लिखा रहता है mdx प्लस ndy इस फॉर्म में है, बट ये क्या है? dy बाई dx इक्वल्स टू, यही तो होता है होमोजेनियस फंक्शन मींस यू नो f1 xy अपॉन f2 xy, और ये भी वही है तो वही है ना। इसको अगर जीरो कर लोगे और dy बाई dx करके लिखोगे, dy बाई dx करके लिखोगे तो क्या होगा? dy बाई dx एंड माइनस साइन के साथ m बाई n हो जाएगा। इसी टाइप का तो है, वही होमोजेनियस फंक्शन टाइप का ही है। यहाँ पर नेगेटिव रखा है, किसी के भी साथ रख लेंगे इस टाइप से। बट होमोजेनियस फंक्शन वी नो, होमोजेनियस फंक्शन का मीनिंग ये है कि जो m और n की वैल्यू है उसका हर टर्म में डिग्री सेम है। सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन और नॉट? टेल मी, ये जो दिया हुआ है yes, sir. क्वेश्चन, ये होमोजेनियस है ना? dx के साथ भी जो टर्म है वो x स्क्वायर है, y है, मतलब कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। ये 3 है ना। ऊपर में भी पावर देखो, हर टर्म का 3 है, नीचे इधर वाले में भी देखो एक्स क्यू है और 3x स्क्वायर y है। तो ये अब भले माइनस साइन लगा हुआ है बट ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड अपना वो जो पुराना वाला है y इक्वल टू vx वाला मेथड है वो भी चले, बट इस क्वेश्चन ये एग्जैक्टनेस से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक टेक्निक, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का ना डिफरेंट टाइप का टेक्निक है, वो बस वो टेक्निक याद रखना है कि कौन सा रूल कहाँ पर लगाना है, कैसे सॉल्व हो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने दे देंगे, पता चला 10 लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने फट से कर लिया 1 मिनट के अंदर, और कोई 10 मिनट लगा रहा है, नहीं हो रहा है। बट वो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है ना, कौन सा टेक्निक फट से यहाँ शूट करेगा। एक तो y इक्वल टू vx लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मतलब जो अपना इक्वेशन है। बट उससे इजी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, जब ये ऐसा फॉर्म तो वही है, बट यहाँ पर भी वी कैन यूज एग्जैक्टनेस मेथड। तो इसके लिए एग्जैक्टनेस मेथड में डायरेक्ट अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, del m by del y del n by del x निकाल के देखो, डायरेक्ट देख सकते हैं निकाल के, अगर इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। बट होमोजेनियस के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम फाइंड कर ले और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन में, दोनों तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn का फॉर्म चेंज हो जाएगा, जो mn की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, और फिर del m by del y del n by del x की वैल्यू इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद का जो mn है उसको लेके फिर सॉल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy, n की जगह बिना x वाला टर्म लेना है, ये सॉल्यूशन होता है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर del m by del x और del n by del y इक्वल है क्या, देख के बताओ। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इजी रहता है ना, m भी दिख रहा है n भी दिख रहा है, क्या del m by del x del m by del y del n by del x इक्वल है क्या? हेलो, सॉल्व करने बैठे हो सब लोग, इसीलिए पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ कितना टाइम लगता है। तो आधा मिनट भी नहीं लगना है। फॉर दिस इक्वेशन m क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर, n क्या है माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये जो वैल्यू है del m by del y del n by del x इक्वल है। हेलो, है क्या इक्वल? Yes, sir.
इक्वल है क्या, या डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, इक्वेशन तो दिख रहा है क्या, एम इक्वल्स टू, एम क्या है, नो सर, एम क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x 2xy square और एन क्या है, माइनस एक्स क्यू प्लस माइनस एक्स क्यू प्लस 3x square y 3x स्क्वायर वाई है ना, ये है ना एम एन। अब लिखते समय अच्छे से लिखना है, तो शॉर्टकट में हो रहा है, एम एन इक्वल टू आ गया इक्वेशन के लिए, ये हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, y के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, और इधर नहीं होगा, कहाँ होगा, x के रेस्पेक्ट में माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर नहीं होना है इक्वल। implies given equation is not exact. Since given equation is homogeneous equation, therefore IF लिख रहा हूं, अभी पहली बार मैं IF यूज कर रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जिससे अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करे तो वो एग्जैक्ट बन जाता है। या IF होमोजेनियस इक्वेशन के केस में IF जो होता है 1 अपॉन mx प्लस ny इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नीचे वाला क्वांटिटी 0 नहीं है, मैंने बताया था 4-5 टेक्निक है, याद रखना है, क्लियर है। ये है किसके लिए, होमोजेनियस इक्वेशन हो और डायरेक्ट एग्जैक्ट ना हो, तो उस केस में इसको हम IF ले सकते हैं। ये वो फैक्टर है जिसको सॉल्व करने के बाद अगर सिंगल टर्म मिले तभी हम इस मेथड को यूज करते हैं, जल्दी होगा, नहीं तो फिर वही पुराना मेथड जो 12th में पढ़े y इक्वल टू vx वाला मेथड। क्लियर है। सो यहां पर कब यूज होता है, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होना है नीचे वाला, और इसकी जो सॉल्विंग के बाद सिंगल टर्म होना चाहिए, 1 अपॉन समथिंग या जैसा भी हो, सिंगल टर्म आना चाहिए, 2-3 टर्म प्लस में ना हो। 2-3 टर्म प्लस में आता है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे अच्छा तो वही 12th वाला मेथड ठीक है, y इक्वल टू vx होमोजेनियस के लिए। बट अगर होमोजेनियस है और इसको सॉल्व किया और सिंगल टर्म मिला, सो यू कैन टेक दैट एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर उसको लेंगे तो करते क्या है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो दिया हुआ इक्वेशन है, फिर जो न्यू m और न्यू n बनता है वो उसके लिए एग्जैक्ट हो जाता है, फिर वो एग्जैक्ट हो जाता है। सो या 1 अपॉन mx प्लस ny इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ तुम लोग। सॉल्व करना है और बताना है। m की वैल्यू लिखो x, n की वैल्यू लिखो और y इक्वल्स टू, कैलकुलेट इट, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर। सब लोग पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो जो 2-4 लोग सॉल्व कर रहे हो बताओ। yes sir, बोलो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 1 अपॉन, कैलकुलेट करने के बाद बताओ y इक्वल टू क्या मिल रहा है, दिख तो रहा है यहाँ पर, x का इंटू होगा इसमें x क्यू वाई, यहाँ पर माइनस एक्स क्यू वाई कैंसिल, माइनस 2x वाई क्यूब x square y square। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर इस मेथड को याद रखना है कि ये मेथड कब यूज होता है, जब होमोजेनियस हो और इसकी वैल्यू सिंगल टर्म आए। ये सिंगल टर्म आया तो IF लेते हैं इसको, सो वी कैन टेक IF इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब IF लेने के बाद क्या करना पड़ता है, इस IF से कोई गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो फिर जो इक्वेशन का फॉर्म आएगा वो एग्जैक्ट होगा। ओके, सो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाई 1 upon x square y square on both side, we get इस IF से
मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाय दिस IF, जो IF मिला अपना, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों तरफ। सो क्या मिलेगा? फर्स्ट टेल मी, दिस dx प्लस दिस dy इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से देखो, गिवन इक्वेशन को देखो और इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब हर टर्म में मल्टीप्लाई करो और नीचे रहेगा डिवाइड करके बताओ क्या आना है। फर्स्ट टर्म जैसे एक्स स्क्वायर वाई है, उसको डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, सो 1/y क्या आना है? 1/y, यही आना है ना फर्स्ट टर्म में, माइनस x 2/x, फिर क्या आना है? x³ सो x अपॉन वाई स्क्वायर ना, x अपॉन वाई स्क्वायर, फिर माइनस वो माइनस साइन में है, तो यहाँ पर माइनस साइन में है तो इसको इसके अंदर ही रख लेता हूँ माइनस साइन में, ये माइनस ये प्लस, सो क्या हो जाएगा? 3x² वाई स्क्वायर, सो 3/y, 3/y, ये हो गया, मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया गिवन इक्वेशन को, ये मिला। अब दिस इज न्यू फॉर्म आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया अभी एग्जैक्ट। अब यहाँ के लिए m ये है, n ये है, नाउ यू कैन सी दिस इज एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि इसका ये m है और ये n है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो पार्शियली, देखो वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा इसका 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y², और इसका 0, मतलब -1/y²। इसको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये 1 हो गया, -1/y² हो गया, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये y है। सो दोनों इक्वल आ गया, del m/del y, del u/del x, बिकॉज ये IF है, इसलिए ये हो गया एग्जैक्ट। Which is exact? Which is exact इक्वेशन। अब ये अगर एग्जैक्ट इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, which is exact, so its solution is given by its solution is given by उस लाइन के बाद है ना, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होगा सॉल्यूशन बताओ? सॉल्यूशन भी तो एकदम इजी है, एक लाइन में लिखना है। हेलो, यस सर। सॉल्यूशन लिखो, बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, ये m के जगह पे 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ये n है, x कंटेन नहीं होना चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन m dx y कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहां पर क्या होगा? -3/y प्लस 3/y, यहाँ प्लस है ना, प्लस 3/y, ये x वाला टर्म नहीं लेना है, इसको लेना है, ये न्यू m है, ये न्यू n है, सो हो गया बस, सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट हो गया फटाक से। क्या है ये? इसकी वैल्यू क्या होना है? किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है? x के रेस्पेक्ट में, सो x/y माइनस 1/x का क्या होता है? log x, इंटीग्रेशन log x प्लस 3 log y, 3 log y इक्वल्स टू c, बस दिस इज द सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट सिंपलीफाई कर लेना है थोड़ा सा सॉल्यूशन को। सो सॉल्यूशन लिखना बहुत सिंपल है, पहले एग्जैक्टनेस को के लिए IF निकालना है, IF निकाल के मल्टीप्लाई करना है। IF निकालने का अलग अलग टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक हमने क्या देखा? इंस्पेक्शन करके, सेटिंग करके। दूसरा क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन अगर है और सिंगल टर्म मिलता है अगर 1/mx प्लस ny का, तो 1/mx प्लस ny वो फॉर्मूला है IF के लिए। IF इक्वल्स टू 1/mx प्लस ny, दैट इज द फॉर्मूला। इफ सिंगल टर्म मिलता है तो यूज करना है, ये है सॉल्यूशन। ओके, सो इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, x/y माइनस क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर सकते हो ना इसको,
बहुत तरह तरह से लिख सकते हैं। इसका क्या होना है, लॉग माइनस साइन यहां पर रखे तो क्या होना है, हेलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, हेलो। Yes, sir. लिख सकते हैं। ये भी सॉल्यूशन इसी को लिख देना, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपलीफाई करने ये यही सॉल्यूशन है, बस इतना हो गया तो सफिशिएंट है। ये ई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ये जो इसको उधर ले जाओ, सी को इधर ले आओ, फिर लॉग को हटा दो, इस सॉल्यूशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो क्या होगा, x बाई वाई माइनस सी इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब। ये होना है कि नहीं, ये 3 यहाँ पर y में जाता है, ये 2 में जाता है, ये माइनस को कॉमन ले लिए तो ये माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू आ जाएगा। ये ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है, लॉग को हटाना तो ई के पावर में आ जाएगा, ई के पावर में आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यू ई टू दी पावर एक्स बाई वाई माइनस सी। ये सब सोल्यूशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो यू कैन राइट इटसेल्फ, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी, किसी को भी। वो दूसरा फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। Okay, so now we can complete it, ना? Okay, ठीक है, Yes, sir. क्लोज कर रहा हूँ, है ना? Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके।